All right, everybody. So today we are going to start our new topic, which is inequalities. Again, I'm going to teach according to the syllabus. So please pay attention. It's a new topic for you. So try to understand this. This is our topic, linear inequalities. Linear inequalities. Okay. So just give me a second. All right. So it's our topic, linear inequalities. So first of all, you need to understand that what what is in the syllabus. According to the according to the examiner, it says that represent and interpret inequalities, including on a number line. So this is important thing. So first of all, we need to understand that what inequality is. So let's study that. So better remember one thing that in maths we have two types of things. The first one is equality, and the second one is inequality. Now try to understand this thing that in inequality we have equals to symbol, and inequality we have these four symbols. Okay. Now remember one thing that in equality I am very much sure about anything, but in inequality I will be having a doubt. I will be having a doubt. Now what is this thing? Like for example, if I say, let me talk in very easy language. Like for example, if I say that my mass is equals to 80 kg, so this statement has no doubt. Agree? Because you are sure about something that this is and that this particular thing it is equals to 80 kg. Got it? But if I talk about that if I say that my mass is greater than greater than 80 kg, so this statement has a doubt. How much greater than 80 kg? It can be 80.5, it can be 90, it can be 100. So this is a doubtful statement. And we write this in mass like mass is greater than 80 kg. Or if I write the same statement as mass is less than less than 80. So I have to write mass is less than 80. Again, it is having a doubt. Okay? It will create a doubt in your mind that this mass is less than 80. So it is how much less than 80? It can be 79, it can be 79.9, it can be 70, it can be 60. Same goes like that mass is greater than greater than or equals to 80 kg. So now remember one thing, this statement is also having a doubt that mass is greater than or equals to 80 kg. So it can be 80, but it can be 81. So that is also a doubtful statement. And at the same time, you can also say that mass is less than or equals to 80 kg. So that is also a doubtful statement where you will be saying that mass is less than or equals to 80 kg. So remember one thing, that equality gives us one dimension, and it gives us the surety about anything. Like for example, if I say that the length of this pencil is, for example, 20 centimeters, and if I say that this is equals to 20 centimeters, so then I am sure that this is equals to 20 centimeter. But if I say that the length of this pencil is less than 20, I'm not sure. If I say that if it is greater than 15, I am not sure. If I say that the length of this pencil is greater than or equals to 20 centimeter, I'm not sure. If I say that the length of this pencil is less than or equals to 20, I'm not sure. Whenever you will be having a doubt, you will be using inequalities in maths, not the symbol of equality. Remember one thing, representing this on a number line, you have to follow only one thing, that how to represent this on a number line. So on number line, you need to understand this thing, that on number line, Afreen, I hope you understood the basic part. On number line, for these two symbols, you draw a circle with no color. Okay, you will not color it.
but you will draw these two symbols with a colored circle. So you will have to color this. Okay, so you have to write here, I'm writing this in notes, that empty, and this should be filled circle. Okay, empty circle and filled circle. I know that this is pretty basic thing regarding mathematics, but still all of you have to understand this thing, that what this thing is all about. So those who have joined late, now remember this, today we are going to start the inequalities topic. Inequalities topic, you need to understand what is the concept of equality and what is inequality. Equality says that you have equals to symbol. So if I say that my mass is 80 kg, so I am 100% sure that okay, my mass is 80 kgs. Agree? But if I say that my mass is greater than 80 kg, so I'm not sure. My mass is less than 80 kg, I am not sure. My mass is greater than or equals to 80 kg, I am not sure. My mass is less than or equals to 80 kg, I am again not sure. So remember that whenever you are not sure in maths, you will be using inequalities. Is this clear, everybody, or not? And I want all of you to tell me one thing, that whether all of you can understand whatever I'm saying, and can you hear me properly, and can you see my screen? Yes, All sir. of you, please. जी सर, बिल्कुल Yes, sir. सर। All right, thank you so much. Now you need to understand this thing, that once you got the topic understanding, that okay, what this thing is all about, according to the syllabus, it is written that you should know that how to represent and interpret inequalities, including on a number line, that how to draw them on a number line, and it will be asked in a paper for 1 mark or 2 marks. So you will see that it will be in the paper for 1 or 2 marks. So you need to get those 2 marks from the examiner. How to get it? It is very easy. Let me open a worksheet in front of you. You can open these worksheets for your own as well. And how to do it, let me show you. Okay, just go back, just going there in order to make this statement. Like for example, let me write here a statement examples for you, then we can do some practice examples. So example number one, it says that represent on number line. Represent this on number line. Part A, it says that x is greater than 5. So x is greater than 5. Now beta, we all know that on a number line these values are something like that. So you will be having negative values here: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now Afreen, I can see that one thing, that I have this kind of inequality here. So it means that I have to draw a circle, but empty circle. But where I will be drawing the circle at 5. Okay, so I have to draw the circle at 5. Okay, now according to the examiner, I mean, it is saying that it is greater than 5. So I have to draw the arrow towards the right side, and I will write that x here for the examiner, that x is greater than 5. But what happens, Yamna, if it was something like that, in the second example, if I say that x is less than or equals to 2, so beta, I will draw a number line, and you will see that the number line will be drawn in the paper. वो पेपर में ऑलरेडी बनी होगी, ठीक है, आपने नहीं बनानी इसको, ठीक है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. X is less than or equals to 2. So what you're gonna do is you're gonna just draw a circle. Now this circle should be colored, so I will do some color inside. Understood, everybody, or not? Yes or no? Yes. And then it is less than or equals to 2, so I will drag a line towards the left side, because left side is this side of the number line. So that is how we represent them in on a number line. Understood, everybody, or not? Yes or no? And the third case you need to understand is, जी बेटा, अगर greater to होता तो फिर पॉजिटिव साइड पे लाइन जाती। पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। अगर आफरीन देखो, अगर ये आ जाए ना कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, बट x इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 2, तो मैं इस लाइन को कैसे लगाता, ठीक है। अब आपको इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए मैथ्स में। अब आपने इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द वेरिएबल, तो आप लिखोगी x, ठीक हो गया। बस पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूँ, लिख के सिखा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। x इज लेस देन 2, एग्री?
Yes, और sir. एंड x इज ग्रेटर देन, सॉरी, x इज, मैंने उल्टा लिख दिया, x इज ग्रेटर देन 2। आफरीन, x इज ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा है, लेकिन वो कह रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है आफरीन, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे लगाते हैं? बहुत पीस ऑफ केक है। जरा देखो, लाइन लगाओ। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 यहां पर आएगा, 3 यहां पे आएगा, 4 यहां पे आएगा और 5 यहां पर आएगा। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. जी. अब देखें, अब 5 के ऊपर आई विल ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, एंड 2 के ऊपर आई विल ड्रॉ अ सर्कल एंड आई विल कनेक्ट दोस टू सर्कल्स, बट आई हैव टू फिल द सर्कल ऑफ 5। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? Yes, sir. So, Afreen, you need to understand this thing that the value of x can be, x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है 3, हो सकती है 4, हो सकती है और 5 भी हो सकती है। अंडरस्टूड? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, लेकिन उन्होंने 2 के बारे में क्लियरली बोल दिया था दैट x इज ग्रेटर देन 2, तो हम 2 को एज एन आंसर नहीं ले सकते। अंडरस्टूड? सर हम एक्स कहाँ पे लिखेंगे? एक्स यहाँ पे, मतलब एक्स तो यहाँ पे नंबर लाइन में यहाँ पे होता है ना, ठीक है, नंबर लाइन में लिखा होता है। मैं वर्कशीट ओपन करता हूँ तो यू विल सी दैट। ठीक है, आरोम, व्हाट हैपन विद योर कनेक्शन? उमर? सर या सर ये वाईफाई ऑफ है। जी जी, सर इसमें पहले हम पहले मतलब हाँ बोलो। सर जी मैं पूछ साइम, लेता हूँ। जी। अच्छा सर, ये चैट बॉक्स में मैंने शेयर किया ये एरो। सर मैंने जो सीखा है तो हम एरो ऐसे बनाते थे, ये सी एग्जाम्पल पर। सी एग्जांपल पर क्या? पढ़ी? जी जी। नहीं नहीं नहीं, अब इसमें डॉटेड लाइन लगाने की कोई इतनी नहीं ऐसा जितनी नहीं, तुक नहीं है। डॉटेड लाइन नहीं है सर। सर वो सर्कल की जगह वो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन क्या है? हाँ ठीक है, नहीं है, कैम्ब्रिज में इस तरह की चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करें तो इट्स फाइन। ठीक है, आप ठीक है। देख लें इस सिलेबस में आपको नजर आ रहा है। सर अच्छा। जी जी, बिल्कुल। तो ये जो सी पार्ट है इसमें हम जी पहले जी, इस तरह से नहीं करेंगे कि नंबर लाइन पे पहले 5 की लाइन लगाएंगे और फिर 2 की। तो मेरा बेटा दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं ना, कि नहीं लगा सकते? समझ आ गई लगा आपको? सकते होंगे सर। दोनों 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 एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, आज के बाद आपने कहना है कि हम दोनों एक साथ लगा सकेंगे। अभी मैं जो वर्कशीट कराऊंगा ना, उसके बाद आप लोग कहोगे कि ठीक है जी, हम लोग एक साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप खुद ही बोलोगी। ठीक है, अब देखें, बेसिक वर्कशीट निकालता हूँ मैं आप लोगों के सामने। क्यों करता हूँ क्लास में ही ये सब चीजें? ताकि आप लोगों को पढ़ने का तरीका आ जाए और आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सको। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें मैं पहले से भी ऐड कर सकता हूँ इसमें। इनइक्वालिटी आगे मैंने लिख दिया कॉर्बेट मैथ्स। तो होगा क्या कि हमें एक बेसिक सी वर्कशीट मिलेगी और उस बेसिक सी वर्कशीट के अंदर ही हम लोग सारी इनइक्वालिटीज को सीख लेंगे। और जब इनइक्वालिटीज को सीख लेंगे तो फिर जब हम पास पेपर ओपन करेंगे तो हमें वहां पे इसको बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, सो डू मेक श्योर दैट। ठीक है, इंपोर्ट टू करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके, लेट्स सी, दैट वेयर व्हाट वी गॉट हियर। ठीक है, सो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। और उमर आई होप यू कैन हियर मी, एंड मोहित कैन यू हियर मी? Yes, sir. So it says that x is, the first one is x is greater than 4. ठीक है, first one will be matched with the third one because match each inequality to the correct description. आफरीन, second one किसके साथ मैच होना चाहिए? first, second और fourth? आफरीन, मेक इट क्विक, जल्दी जल्दी करो। Sir, I guess अच्छा ये थर्ड वाला है। बेटा आराम से पढ़ो, देखो यहाँ पे देखो, x is less than 4 है और equals to 4 है, तो पहले वाले के साथ जाएगा ये। ओ आई थॉट आप मुझसे फर्स्ट वाला पूछ रहे हैं तो मुझे लगा कि ओके ओके, फर्स्ट वाला तो हमने कनेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ओके, थर्ड वाला बताएं। दिस इज गोना बी x is greater than no. ना ना ना, लेस देन 4, x इज लेस देन 4। देखो x की तरफ पे क्रोकोडाइल माउथ बंद है। अंडरस्टूड और नॉट? Yeah. सो x इज लेस देन 4। ठीक है, और लास्ट वाला x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो ये सामने ही मैच हो जाएगा। ठीक है आफरीन, समझ आ गई? जी सर। ओके, रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी। अब मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, आई शुड ड्रॉ, मीशा, एम्प्टी सर्कल और फिल्ड सर्कल। x is greater than 2, empty or filled circle? Anyone?
Sir, filled. empty Sir, empty. एम्प्टी सर्कल बेटा, Empty, sir. इनइक्वालिटी के नीचे लाइन नहीं लगी हुई, तो x इज ग्रेटर देन 2, तो एरो जाएगा राइट साइड पे। अंडरस्टूड? सो आफरीन, x इज ग्रेटर देन 2, तो वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन 3 4 5 हो सकती हैं, 2 नहीं हो सकती। अंडरस्टूड? Yes, sir. So ये ओके, दूसरे वाले में सर्कल कलर्ड होगा। यस, x इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो 4 पे सर्कल लगाएं, लगा दिया ऐसे एक सर्कल। सर्कल लगाने के बाद आपने इस सर्कल को करना है कलर। अब लेस देन और इक्वल टू 4 है, सो साइन ये एरो टुवर्ड्स लेफ्ट चला जाएगा। अंडरस्टूड? ऑलराइट अरवा, it says that y is greater than or equals to 2. What do you think? First, second, third, fourth, कौन सी इनइक्वालिटी है जो कि ये स्टेटमेंट शो करती है that y is greater than or equals to 2? हाँ जी, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। तो सेकंड Sir, वन। second one. Second one. वेरी गुड, सर्कल द करेक्ट इनइक्वालिटी, सेकंड हमने सर्कल कर दी। अच्छा, वो कहते हैं सॉल्व करें, इसको हम थोड़ी देर बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, okay, an inequality is represented on the number line. Okay, you can see that एक inequality आपके सामने number line पे है, लेकिन we can see one thing, Arwa, that both the circles are colored. Agree? So it means that the first one is out and the second one is Sir, also third- out and that third- fourth one is also out. Agree or not? थर्ड Yes, sir. रामीन, मैंने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को क्यों आउट किया है? क्योंकि उसमें मुझे ये सिंबल नजर आ रहा है, ठीक है? और जबकि दोनों सिंबल ऐसे होने चाहिए, so automatically I got the answer that this one is the correct answer. Understood? जी sir. Easy. Very easy, sir. चलो, गुड जॉब। हादी, ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर बात करते हैं। थोड़ी देर बात करते हैं, जरा इनइक्वालिटीज की नंबर लाइनिंग के ऊपर हम लोग जरा कर लेते हैं पहले, जरा थोड़ा सा। चलें जी, मेरे ख्याल से अब हमें वो क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। चलें, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के ऊपर। ऑलराइट एवरीबॉडी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है? देयर इज नो रॉकेट साइंस। नाउ रिमेंबर वन थिंग, whenever you are solving the inequality you have to remember few points from my side, ठीक है? पहला पॉइंट है मुईद, ठीक है, कीप योर वेरिएबल पॉजिटिव, ठीक है? कीप योर वेरिएबल पॉजिटिव। अंडरस्टूड? आपने अपने वेरिएबल को पॉजिटिव रखना है हमेशा, ये याद रखें। एंड ट्रीट इनइक्वालिटी लाइक इक्वल्स टू, आप इक्वल्स टू की तरह ही ट्रीट करो उसको। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? कीप योर वेरिएबल पॉजिटिव, याद रहेगी ये बात। अंडरस्टूड? एंड ट्रीट योर इनइक्वालिटी लाइक इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू की तरह ही उसको ट्रीट करना है। तो क्या करना है? देखो आफरीन, 3x is less than 24. Aram, can you hear me or not? Now I want to solve. It is written here solve. Solve means find x. Do you agree with me, Aram, or not? So divide by 3 on both sides. Divide by 3 on both sides. Hadi, आवाज आ रही है बेटा? तो ये हो जाएगा x is less than 24 by 3. So x is less than 24 divided by 3 बेटा 8 आता है, ठीक है आफरीन? इसका मतलब ये है आफरीन दैट x कैन बी एनीथिंग लेस देन 8. 8 नहीं हो सकता, इट कैन बी 7, इट कैन बी 6, इट कैन बी 2, इट कैन बी -1, बट इट कैन नॉट बी 8 और ग्रेटर देन 8. अंडरस्टूड? जी सर। अंडरस्टूड? ओके, सॉल्व द इनइक्वालिटी। सर की बात याद रखनी है, कीप योर वेरिएबल पॉजिटिव एंड ट्रीट इनइक्वालिटी लाइक इक्वल्स टू। तो आपका वेरिएबल 3x इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सो सेंड -8 टू द राइट साइड। सो इट विल हैपन 3x is greater than 16 plus 8. 3x is greater than 24 again. Divided by 3 on both sides. So 24 divided by 3. So it means that x is greater than इक्वल की 8. तरह है, क्या चीज? ये इक्वल की तरह है, ये साइन जो है बीच में, ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर बोल रहा हूं मैंने, इक्वल बोला है। नहीं सर, इक्वल्स की तरह होता है। बिल्कुल, इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल इक्वल्स की तरह ही है। अंडरस्टूड? जब हम इनको सॉल्व करते हैं, लेकिन बस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपने अपने वेरिएबल को पॉजिटिव रखना है। मैं हमेशा आपको इक्वेशंस में भी बोलता था कि अपने वेरिएबल को पॉजिटिव रखा करो, ठीक है? वेरिएबल के साथ माइनस का साइन नहीं आया करे। अंडरस्टूड? सर, जी बेटा। सर हमारे पास इसमें साइन कब चेंज होंगे? बेटा साइन में इसीलिए तो चेंज करवाने का बोल ही नहीं रहा आपको, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने वेरिएबल को पॉजिटिव रखें। आपको वो चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर। अंडरस्टूड?
इसीलिए मैं ये इसी कंफ्यूजन के अंदर, क्योंकि फिर बाज़ औक़ात बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही होती। देखिए आपकी एज जो है ना, ठीक है, आप लोग 15-16 इयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, कुछ बच्चे बीच में 13-14 इयर्स ओल्ड भी हैं, ठीक है। आपको इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं सीखनी, आपको आसानी से चीजें सीखनी है। तो भाई मैंने जो आपको बात बताई है ना इनइक्वालिटी के चैप्टर में, दैट यू हैव टू कीप योर वेरिएबल पॉजिटिव and treat inequality like equals to. That's it. That is the sum of this chapter. Understood? Yes. अब देखिए जरा यहाँ पे ये क्वेश्चन 7 हम कर चुके हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब यमुना एक बात मुझे बताएं, क्या 2x पॉजिटिव है? Yes. सो डोंट डिस्टर्ब 2x। -1 को राइट साइड पे हम भेजेंगे, तो 2x इज लेस देन 9 + 1। एनी प्रॉब्लम? 2x इज लेस देन 10 डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। 10 डिवाइडेड बाय 2 बेटा क्या आता है? x इज लेस देन 5। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? Yes. अब राइट डाउन द इनइक्वालिटी शोन ऑन द नंबर लाइन। अब वो एग्जामिनर कहता है कि आपने ये जो इनइक्वालिटी नंबर लाइन पे शो हो रही है उसको बताओ कि वो क्या चीज है। तो इसका मतलब क्या है? मुहीत बेटा नजर आ रही है कि यहाँ पे x लिखा है, तो मैं यहाँ पे x लिख दूंगा। अंडरस्टूड? मुहीत बेटा यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये सर्कल कलर्ड नहीं है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे या तो ये सिंबल लगाना है या ये सिंबल लगाना है। एग्री? सो ये -2 से राइट साइड है, तो मतलब ये ग्रेटर है। सो x इज ग्रेटर देन -2। कैन आई से दिस और नॉट एवरीबॉडी? यस और नो? यस और नो? मीशा, निखिल, Sir, I तैमूर, couldn't understand. व्हाट? ये x is greater than -2 वाली मुझे समझ नहीं आई। मेरा बेटा ये देख रही हो आप, यहाँ पे x लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, जो शेड मैंने किया है, जी। मैंने ये x इधर लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? Nope. ओके, यहाँ पे ये -2 के ऊपर शेड है, मैंने जी। यहाँ पे -2 लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? नहीं अब ये एरो राइट साइड पे जा रहा है कि नहीं? जा रहा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाया है। अंडरस्टूड? अच्छा जी समझ गई। ठीक है। अब एग्जामिनर देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। रामीन प्लीज पे अटेंशन। अच्छा, दिस इज फॉर यू। राइट डाउन ऑल इंटीजर्स दैट सैटिस्फाई बोथ इनइक्वालिटी। वो तमाम इंटीजर्स लिखो जो दोनों में आ जाएं, ठीक है। पहला था x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन -2। तो बेटा ऐसा करते हैं कि x इज लेस देन 5 को हम लाइन पे प्लॉट करते हैं। सो मीशा 5 के ऊपर सर्कल लगा दूं? मैंने 5 के नीचे लगाया कि ऊपर एक ऑलरेडी एक लाइन लगी हुई है। एनी प्रॉब्लम मीशा? So x is less than 5. So what will happen? Okay, that I will draw the arrow towards the left side. Understood, Rami? Yes, sir. Okay, it says that okay, write down all the integers that will satisfy this inequality. So beta, you can see that it would be -1, it can be 0, it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, but it cannot be 5 and it cannot be -2. The reason is it is clearly saying that x is greater than -2, and in the second statement is saying that x is less than 5. So it can be Hadi, it can be -1, it can be 0, it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, but it cannot be 5 or -2. Understood everybody or not? Yes or no, Temur? Yes, sir. Good job. All right, proceeding. Okay. Now this is circle the list of integers that satisfies the inequality. Okay, confusion हो रही है ना, तो आराम से मेरे तरीके पे अमल करना है। ये कह रहा है कि ये पढ़ के दिखाते हैं, ठीक है। सो आफरीन, अब आपका लेवल होना चाहिए कि आप इसको पढ़ सको। जरा मुझे पढ़ के बताओ कि क्या लिखा हुआ है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि n is less than 8। ये मैंने आपकी हेल्प की। अब बताओ मुझे कि दूसरा मैं क्या लिखूं? n is what? आफरीन दूसरा क्या लिखूं? n is less than 8, that is understood, ठीक है। So that is n is equals to minus. greater than or Oh. equals to? Yeah. Then greater than or equals or equals to 4, equals to 4। अब आफरीन यहाँ पर थोड़ी समझ नहीं आती बंदे को, लाइन लगा ले। जी। यमुना 4 पहले आता है कि 8 पहले आता है बेटा? 4. हाँ जी, 4 5 6 7 and 8। ओके ओके रामीन, 5 x 6 और 7. n is less than 8, तो 8 के ऊपर सर्कल लगाता हूँ, कलर नहीं करूंगा। n is greater than or equals to 4, 4 के ऊपर सर्कल लगाता हूँ लेकिन कलर करूंगा। तो साइन जब इनको कनेक्ट करूंगा तो अब बताएं बेटा, व्हाट आर द आंसर्स? टेल मी। 4, 5, 6, 7. Very good. 4 5 6 7 is the answer. 8 is not the answer. Understood everybody or not? Hadi, do you understand this?
Yes, sir, you will. So 4, 5, 6 and 7 is the answer. So this is your final answer. Better latecomers, listen to me very carefully. मैं थोड़ा बहुत गुजारा कर रहा हूँ आजकल कि आप लोग लेट क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन एक चीज याद रखें कि फिर अभी ये विंटर ब्रेक के बाद जो है ना, मैंने फिर किसी को लेट क्लास में अलाउ नहीं करना। मैं क्लास को लॉक कर दूंगा शुरू के 5 मिनट में ही, ठीक है? सो प्लीज 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 कोशिश करें कि क्लास में जल्दी आए, वरना बिल्कुल ना आए, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10, Ali, talking to you because you were late. n is an integer, n is an integer, कहता है n एक integer है, और मैथ्स में हमने पढ़ा था integer can be a positive value, okay, integer can be a negative value and it can be 0. List the possible values of n, -2 और 3 के दरमियान में। तो हम पहले लिखते हैं -2, ठीक है साइम? फिर हम लिखते हैं -1, 0, 1, 2, 3। साइम 3 के ऊपर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, कलर नहीं करना, क्या करना है? और -2 वाले के नीचे भी सर्कल ड्रॉ कर दिया। दोनों में से किसी एक को कलर नहीं करना, तो मैं ये 3 वाले को मुझे कलर करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ड्रैग अ लाइन। सो व्हाट आर द आंसर्स बेटा? जी बताएं, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n? -1, 0, 1, 2, 3. -1, 0, 1, 2 and 3 would be the answer, Hadi. The reason is because the inequality is yelling here that n is greater than -2, so n cannot be the -2 cannot be the answer. N can be -1, 0, 1, 2 and 3 as well, because it is saying that n is less than or equals to 3. Understood everybody or not? Yes or no? Aron beta, can you hear me or not? Yes, sir. Okay, now the question is from you. Look at the part B, please. Write down the inequality shown in the diagram. Can you tell me what is the inequality shown in this diagram? X is greater than or equals to 1. Good job. Now, Afreen, look at this. This is X. So I'm going to write here X. This is written 1. I'm going to write here 1. Circle is colored right side. So X is greater than or equals to 1. Good job. Okay. Now, look at this one. Solve. You have to keep your variable positive. So 3y is already positive. So Mueed, so 3y को disturb करने की जरूरत नहीं है. Umar, 3y is greater than 17 plus 4 हो जाएगा. 3y is greater than 21 हो जाएगा. So y is greater than 3 को both 21 by sides 3 हो पे जाएगा. Very good. So y is greater than 7 is the answer. Understood everybody or not? Yes or no? Ali, समझ आ रही है बेटा? लेट आए हो थोड़ा सा क्लास में आज. Ali, समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. Okay, write down one integer which satisfy the inequality. Ali, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6x is greater than 42. कहता है वन इंटीजर लिखो जो उसको सेटिस्फाई करे, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो अली, योर वेरिएबल इज ऑलरेडी पॉजिटिव, डिवाइड बाय 6 कर लो बस, जस्ट डिवाइड बाय 6, 6 कैंसिल, x is greater than 6 ones are 6, 6 sevens are 42. Ali, just tell me one value which is greater than 7. X is greater than 7. Tell me just one value. 8. Good job. आप 8 लिखो, 9 लिखो, 20 लिखो, 1000 लिखो. It's correct answer. Okay, but you cannot write 7. Okay. Okay, sir. Good job. Okay. चलें जी, अब ट्राई करते हैं कौन सा बच्चा करेगा। साइम आप बताएं बेटा। 3x plus 4 is less than 13, less than or equals to 13. Should I move 3x to the right side? Nikhil. Yes, sir. Yeah, tell me. जी हम इस +4 को साइड मूव करेंगे, फिर हमारा Okay, अगर so 3x 3x मूव is करें less than or equals to 13 minus 4. 3x is less than or equals to 9. 9. So divided by 3 on both sides. So x is less than or equals to 3. तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। यमुना बेटा समझ आई है? Yes, sir. अच्छा, यमुना ही कहता है राइट डाउन ऑल द इंटीजर वैल्यूज दैट सेटिस्फाइज दिस थिंग। ओके, तो अभी आपको नजर आ रहा है, आपको सर तो स्केरी है। स्केरी नहीं है बेटा, आपने इसको पहले जरा सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको ये नजर आ रहा है कि यमुना यहाँ पे x के साथ 2 लगा है, तो हमने डिवाइड बाय 2 कर देना है। क्या करना है पहले? Divide by 2. तो ये देखिए, जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा इसको, आरोम, if I divide this whole inequality by 2 like this, so these 2's will get cancelled. Agree or not? So it would be -1, x is greater than or equals to -1 and less than 3.
ओके, सो रामीन बेटा इनका आंसर निकालने के लिए -1 0 1 2 3 तक वैल्यूज लिखनी है, लिख दी। ओके, 3 को सर्कल नहीं करना, -1 को बेटा करेंगे हम लोग सर्कल, ठीक है, और लाइन लगा देंगे। एग्जामिनर कहता है राइट डाउन ऑल द इंटीजर वैल्यूज, सो -1 इज द आंसर, 0 is the answer, 1 is the answer, and 2 is the answer. Do not write 3 because 3 is not colored. Understood? It is clearly saying that x is less than 3. Arom, is this clear to you? Mohit, is this clear to you? Umar, is this clear to you? Yes, sir. Easier. यस सर। चलें, मोहित बताएं बेटा क्या करूं इसमें, सॉल्व द एक बार इनइक्वालिटी ऊपर कैसे? से देखा है। ओके, सर इसमें हाँ जी, इसमें 2 को हम राइट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x is less than जी 6 minus 2। हाँ जी, जी और 6 minus 2 होता है बेटा 4, जी तो x is less than 4/5। अंडरस्टूड? जी और मैथ्स में 4/5 वैसे 0.8 को बोलते हैं। कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है। सही है सर। ओके, एग्जामिनर कह रहा है बेटा कि राइट डाउन ऑल इंटीजर वैल्यू दैट सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी। सो मेरा बेटा एक बात मुझे बताएं, रामीन एंड यमुना एंड एवरीबॉडी, ठीक है, व्हाट शुड आई डिवाइड, ठीक है, क्या डिवाइड करूं टू मेक सर एक्स द 4 सब्जेक्ट? 4 गुड जॉब। सो डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, 4 4 कैंसिल। मेरा बेटा 9 तो कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है, डिवाइड। आप बताइए ना मुझे, कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो ये क्या आता है 9 डिवाइड बाय 4? सर 28 डिवाइड बाय, 2.25 यहाँ पे तो 7 आ रहा 2.25 है, 2.25। ओके, रामीन ये कहता है कि राइट डाउन ऑल इंटीजर वैल्यूज, तो मेरा बेटा यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। मेरा बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2.25 पॉजिटिव में है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया 4 सर ये पॉजिटिव में कलर है। कैसे पता लगता है? बेटा ये देखें, ये आपको इनइक्वालिटी के नीचे लाइन नजर आ रही है, यस सर। जिस इनइक्वालिटी के नीचे लाइन होती है तो वहां पे हम कलर नहीं कलर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कलर करूंगा 4 के नीचे, 4 के ऊपर मैंने जो सर्कल लगाया इसको मैं कलर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन 2.25 पे मैंने कलर नहीं करना, ठीक है। ओके, एग्जामिनर कहता है राइट डाउन ऑल द इंटीजर वैल्यूज। ओके बेटा, -2.25 के बाद यहाँ पे कौन सा इंटीजर आ रहा है? यहाँ पे 3 आ रहा है सर और 4 आ रहा है। 2.25 और 4 नहीं लिखना। नहीं, 4 लिखना है, 2.25 नहीं लिख सकते, समझ आई? सर उधर तो एक क्वेश्चन था उसमें आपने नहीं लिखा था। मेरा बेटा आप जरा गौर करें कि वहां पे वो वैल्यू कुछ इस किस्म की होगी, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा होगा, ठीक है। सर वो 4 सर ये 5 6 7 8 वो वाला। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, x इज ग्रेटर देन 2.25, तो 2.25 से बड़ा इंटीजर 3 है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? एंड x यस इज लेस देन, अच्छा ये 7 है, मैंने 4 लिखा है, जरा यहाँ पे जरा देख लें बेटा प्लीज, ये यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे x इज, ये यहाँ पे 7 लिख रहा है, ओके। तो 2.25 के बाद the integer greater than 2.25 is 3. We will have 4, we will have 5, we will have 6, and we will have 7. So my answer can be 3, 4, 5, 6, and 7. Understood, everybody? This can be my answer. Harun, you are very late. Why? There is a reason for everything we have. Huh? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Why you are so late? Sir, sorry, I was not at home. So better try to be at home, okay? Okay, sir. Okay, so proceeding, next question. Okay, Omar, you have a doubt, so can you please solve this for me? What should I do? सर 6 राइट साइड पे चला जाएगा। 4x is greater than, बेटा इंग्लिश में बात करो, 2 minus 6, आगे और 4x 4x greater than, सर 4 आएगा, बेटा -4 आएगा, -4 डिवाइड बाय 4 ऑन, बोथ साइड। सो -4/4 क्या होता है उमर? 1 आएगा, -1। It would be -1, so x is greater than or equals to -1. Write down the inequality shown by the diagram. Okay, Omar, x is written, write x. Understood? यस सर। 3 is not colored, but just write 3. Agree? So it is less than 3 now, so I will write x is less than 3. Any problem? मैंने लाइन नहीं लगाई नो because the सर। circle was not colored. ठीक है? Now they say that write down all the integers that satisfy both the inequalities shown in part A and part B. Okay, in part A, Omar, you have the inequality x is greater than or equals to -1. So let's draw that line below this line. Any problem, Omar? नो कलर सर। कर दिया, तो ग्रेटर इस साइड पे होता है ना उमर, ठीक है।
Yes, sir. So Omar, your answer can be -1, it can be 0, it can be 1, and it can be 2, but it cannot be 3. Agree or not? Yes, sir. Because 3 is not colored in the first inequality, and we have to give the answer that it must satisfy सर both आ the गई inequalities. समझ आ गई। गुड जॉब, चलें, दैट्स गुड। मैं वही चाहता था कि आपको समझ आ जाए 1 and 2। ठीक है बेटा, समझ आई बेटा सबको? तैमूर, तैमूर समझ आई बेटा? तैमूर समझ आई? ऑलराइट, चलें जी बेटा। व्हाट शुड आई डू इन दिस क्वेश्चन? हादी, व्हाट शुड आई डू इन दिस क्वेश्चन? मुहीद, आप बता दो क्या करें बेटा इस क्वेश्चन में? सर कौन सा वाला 16 वाला? यस सर इसमें जो है 2n को उसका साइड चेंज करता है। अच्छा, -4n plus 2n is less than 9, so it जी would be 6n is less than 9, जी n is 6 less than 9 by 6, 9 by 6 टेबल 3 में कटता है बेटा, जी तो ये सर आ जाएगा 3/2। So जी it means that n is less than 1.5 या 3/2, एक ही बात, ठीक है? Okay, on the number line show the set of values of x for which this is happening. So now better remember one thing, everything is fine, but I have +2 here. Understood everybody or not? Yes or no? Agree? Yes. So what I'm going to do is I'm going to do something like that I'm going to write 1 less than x plus 2 less than 5 बेटा। now फिर please इसको try भी to डिवाइड understand। करेंगे। नहीं नहीं, +2 हो रहा है बेटा, ये माइनस होगा, +2 will go there, agree? But now the point is, Arom, please pay attention. This +2 is right here, so you will subtract 2 everywhere. Understood? So you will write subtract 2, subtract 2. So what will happen? 1 minus 2 less than x plus 2 minus 2 less than 5 minus 2. So 1 minus 2 is -1, plus 2 minus 2 cancel, that's what we 0 wanted. तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 minus 2 is 3. अब एग्जामिनर कहता है on the number line show this, so none of the inequality will be colored because both of the symbols are very same straight symbols. So just drag a circle on -1 and +3 and connect the lines circles with the help of a arrow. So these तेरे are the कैसे पता है answers. कि -2 करना है इसके साथ? बेटा ये आप दरमियान में +2 आपको हटाना था कि नहीं? तो +2 will be cancelled with -2. Understood or not? सर लेकिन ये तो नहीं बोला कि माइनस करना। बेटा माइनस नहीं बोला, मुझे बताओ कि +2 को मैं कैसे कैंसिल करूंगा मैथ्स में? -2 के साथ ही कैंसिल कर सकता हूँ ना? यस तो सर। मैंने क्वेश्चन में क्या किया कि सब जगह पे -2 लगा दिया ताकि क्वेश्चन बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं लास्ट में और फर्स्ट में लगाऊं, क्वेश्चन को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है? मैथ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, आपने बैलेंस करना होता है। अंडरस्टूड? यस सर। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है आगे। क्वेश्चन 17, सॉल्व द इनइक्वालिटी 5x - 2 इज लेस देन 22। तो बड़ा इजी सवाल है। 5x इज लेस देन 22 + 2, 5x इज लेस देन 24, x इज लेस देन 24/5। बस ये फाइनल आंसर है, इसके अलावा अभी हमें आगे जाने की जरूरत है। अच्छा कैलकुलेटर अलाउड है, तो 24/5 क्या आता है बता सकते हैं मुझे? 4.8 आता है? जी सर। Okay, it's 4.8. So x is less than 4.8. Given also that x is greater than 1 and x is an integer, write down all the possible values of x. So x is greater than 1, so x can be 2, x can be 3, and x can be 4. But it is 4.8 is the limit. 4.8 is not a decimal. Sorry, it is a decimal. It is not an integer. So 234 is the answer. Understood everybody or not? Yes or no? Yes. बिल्कुल Okay. सर। Solve the inequality. So what is the first step, beta? Open brackets. What is the first step? Open brackets. So it would be 6x minus 10. सर मल्टीप्लाई 2 विथ नहीं नहीं, मल्टीप्लाई पहले 2 करना ना ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? -10 वहां पे ले जाए। 6x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 43 + 10। सो ये आ जाएगा 6x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 53
सो डिवाइडेड बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। बेटा 53 बाय 6 क्या आता है? सर 8.83। तो 8.83 हमने लिख दिया ये आंसर। अगर डेसिमल जो है ना बहुत बड़ा हुआ करे तो फ्रैक्शन में लिखा करें पेपर में आंसर। आफरीन, लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। अब बताओ वेरिएबल इज पॉजिटिव और नेगेटिव? आफरीन, आफरीन बेटा वेरिएबल इज पॉजिटिव और नेगेटिव? मैंने आपको पहले ही कहा है कि कीप योर वेरिएबल पॉजिटिव। सो आरोम व्हाट शुड आई डू? Arom, what? 8 to the left side and 9 to the right. Okay, so you can see everybody that minus 8x is the greater value and it is my variable. So I must shift this one over there so that my variable is positive. Understood? So what will happen? I will write here 2x plus 8x. Yamna, सुन रही हो बेटा? तो ये आ जाएगा 19 minus 9. Any problem? तो यमुना ये हो गया 10x is greater than 10. Understood? अब देखो मेरा वेरिएबल पॉजिटिव ही है तो मेरे साइन कभी चेंज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। अंडरस्टूड? तो डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। Sir, x is equal to 1. यस, सो x इज ग्रेटर देन 1। बेटा इक्वल तो है ही नहीं इसमें यार, इट इज इनइक्वालिटी। ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन 1। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप देखें। इट वुड बी 3x minus 12 is less than equals to 15। उनको कौन सी क्लास हो रही है? Greater than 15 plus 12, 3x is less than equals to 27 divided by 3 on both sides, so 27 by 3, so x is less than or equals to 9. Easy everybody or not? Yes or no? Yes, sir. Okay, examiner कह रहा है write down the inequality shown by the inequality। यमुना ट्राई करना चाहोगी यार? ट्राई करो जरा। यमुना, कैन यू हियर मी मेरा बेटा? यस सर। चलो ट्राई करो बेटा, शाबाश। इनइक्वालिटी बताओ कि क्या क्या लिखी हुई है। दो इनइक्वालिटीज हैं, एक नहीं दो हैं, बताएं। पहले वेरिएबल क्या है? व्हाट इज वेरिएबल? जस्ट टेल मी। यमुना, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक यार, माइक ऑन करो अपना। सर -1 और 4। अच्छा, पहले मैं लिखता हूँ -1 और 4। दरमियान में क्या लिखूं? एक्स वाई जेड ए बी सी, क्या लिखूं? एक्स। गुड जॉब। ओके, दरमियान में ये आ गया। ओके, अब मुझे बताओ एक्स इज लेस देन 4 है कि ग्रेटर देन 4 है? यमुना बेटा प्लीज टर्न ऑन योर माइक यार, माइक बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम हेल्पिंग यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यमुना, कैन यू हियर मी? जी सर। तो माइक बंद करने की जरूरत नहीं है आपको। अब मुझे बताएं, आपने -1 भी बता दिया, 4 भी बता दिया, दरमियान में x भी लिख दिया। अब मुझे बताओ कि x 4 से छोटा है कि बड़ा है? सर बड़ा है। बेटा 4 से, देखें मेरी बात सुने, 4 से छोटा ही है ना, क्योंकि 4 के बाद कोई वैल्यू ही नहीं है। अंडरस्टूड? देखो ना, लेस आपका देन 4। x जो है वो लेस देन 4 है, तो मैं लेस देन 4 है तो x की तरफ मैं क्रोकोडाइल माउथ को बंद कर दूंगा। अंडरस्टूड? जी सर। एंड x इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर ग्रेटर देन देन और माइनस इक्वल टू। -1, तो मैं अब क्रोकोडाइल माउथ को खोलने वाला हूं x की तरफ। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी के नीचे हम लाइन भी लगाएंगे क्योंकि वो सर्कल कलर्ड है। अंडरस्टूड और नॉट? जी 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 सर। ओके, हाउ टू राइट इट मैं दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है यमुना, प्लीज पे अटेंशन। ओके, मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो आप दोबारा देखेंगे कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे बेटा x लिखा है, यहाँ पे लिख दें x, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे -1 लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम? सो नो x इज सर। लेस देन 4, तो आप लेस देन 4 ऐसे लिखते हैं। x इज ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन -1 है, राइट साइड पे जा रहा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। दैट्स हाउ वी राइट एन इनइक्वालिटी। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? यस सर। ओके, माइक बंद करने की जरूरत नहीं है। अभी माइक ऑन करो, जरा क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे लिए। जी तो माइक बंद सर। करने का बड़ा शौक है। चलो सर 20 - 3x इज लेस देन 20 - 7। तो ये हो जाएगा 20 - 7। ओके, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट 3x इज लेस देन 13।
So x is less than 13 by 3. बेटा 13 डिवाइड बाय 3 क्या होता है? हाँ जी 4.3. 4.3. तो हम लिख सकते हैं कि that x is less than 13 by 3, पर पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरा बेटा? जी सर. चलो अब ये बताओ बेटा, ये कहता है राइट डाउन इंटीजर वैल्यू ऑफ 16। ये लिखा हुआ आपके सामने, पढ़ता नहीं होता कि कंफ्यूज ना हो। ओके क्या करूं कि x सब्जेक्ट बन जाए? व्हाट शुड आई डू? What should I do in order to make x the subject? हाँ जी सर डिवाइड 16 को वहां पे ले जाए। नहीं, क्यों 16 को वहां पे लेके जाना है सर बेटा? डिवाइड सर बाय ये 3. 3x को डिवाइड बाय बोथ साइड्स कर लेना। 3x नहीं, 3 को डिवाइड करना है, तो जी डिवाइड जी बाय ये 3, 3 सर को वही 3 को बिल्कुल। डिवाइड बाय 3 करना है, तो 3 कट गया। अब मुझे बताओ कि 16 डिवाइड बाय 3 क्या आता है? सर 5.3. ये आ रहा है बेटा 5.3। और 20 डिवाइड बाय 3 क्या आता है? जी 20 डिवाइड बाय 3 क्या आता है? 6 सर पॉइंट समथिंग होगा ना? 6.6. 6.6. Okay. Write down integer value of x that satisfy this inequality. Okay. Integer value लिखने के लिए मेरा बेटा मैंने लाइन लगा दी है कि हम ना, मैंने यहाँ पे कलर किया और इस कलर के नीचे मैंने लिख दिया 5.3 और यहाँ पे मैंने कलर नहीं किया और लिख दिया 6.6। एनी प्रॉब्लम? नो सर. यमुना यहाँ पर 5.3 के बाद इस पूरे एरिया में सिर्फ 6 इंटीजर आता है। यस और नो? 5.3 से लेकर 6.6 तक I have only one integer value and that is 6. Agree? जी सर. और आपको पता है हमने यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है ना वो खुद कह भी रहा था, कहता राइट डाउन द इंटीजर वैल्यू लिखा था, वैल्यूज नहीं लिखा था। इसका मतलब है कि एग्जामिनर वाज क्लियर कि आंसर एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं। एग्री? यस सर. चलें बताएंगे हम ना क्या करें, सॉल्व द इनइक्वालिटी। बेटा जो बच्चा माइक बंद करता है ना उसके साथ में ये हाल करता हूँ। चलें जी यमुना, व्हाट शुड आई डू? अच्छा सर ये पॉजिटिव है ना 5x, तो दोनों पॉजिटिव है. हाँ तो छोटे वाले को लाना चाहिए कि बड़े वाले सर को लेके प्लस जाना 4. चाहिए? नहीं सर -4 को हम पहले दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो -14. नहीं. तो ये हम लोग छोटे 5x को इधर ले आएंगे और आपने सही कहा -14 -4 हो जाएगा। ठीक है, जी हमें वेरिएबल को पॉजिटिव रखना है। अंडरस्टूड? और हमारा वेरिएबल पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि 9 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगा तो आई विल गेट 4x। एनी प्रॉब्लम? नो सर. और यहाँ पे आएगा बेटा -18 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम बोथ साइड्स पे, तो ये आ जाएगा बेटा x इज लेस देन और इक्वल टू -18 को डिवाइड बाय 4 करो तो ये आता है -9/2। तो 9/2 होता है मेरे पास 4.5 के बराबर। तो हारून ये आंसर आएगा x इज लेस देन और इक्वल टू -4.5। एग्री और नॉट? ये हो गया हमारा पहला इनइक्वालिटी। ओके नेक्स्ट वन इज y is an integer। मैं पढ़ रहा हूं जरा यहाँ पे, y is an integer, write down all the solution of this inequality। so Arom, I am writing this again here। Arom, what should I do here in order to make y the subject? because y is not subject yet, it is 2y। हाँ जी, what should I do here in order to make y the subject? Divide 2 on all sides. good job। so it would be divide by 2 divide by 2 divide by 2। यमुना यहाँ पे 2 कैंसिल, यही हम चाहते थे। -8/2 is -4 and 0 divided by 2 is 0। okay यमुना एक बात मुझे बताओ, एग्जामिनर इज सेइंग y is greater than or equals to -4 लेकिन less than 0। आंसर्स क्या क्या होंगे जल्दी बताओ? सर -4 3 सॉरी -3 -3 -2 हाँ एंड -4. गुड जॉब वेल डन वेल डन। समझ आ गई है कि कोई हेल्प कर रहा है तुम्हारी? नहीं सर खुद ही करिए. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर कोई बैठा हुआ है। नहीं सर प्रॉमिस कोई नहीं है. ऑलराइट चलें, आई ट्रस्ट यू। ओके क्वेश्चन 23 मैं छोड़ देता हूँ, ये खुद ट्राई कर लेना जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ओके इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम एंड इट्स वेरी इजी। Lee is y years old, so I can say that Lee is equals to y years। okay, Toby is 8 years younger than Lee, so beta I say that
8 years younger than Lee, तो इसका मतलब है कि वो 8 साल छोटा है उससे. Agree or not? Yes or no? And the sum of their ages is 41. Agree? So, statement number one, it says that Lee is Y year. So I can write that the age of Lee is Y. Statement number two, Toby is 8 years younger than Lee. So can I say that Toby is what? मेरा Toby के लिए क्या लिखूं? 8 years younger है, 8 साल छोटा है. सर Plus या y minus? y Y minus 8 less है than क्या? 8. वेरी गुड. y माइनस 8. ठीक है, हमने पहले माइनस 8 लिखा. ठीक है, लेस देन 8 नहीं बोलो यहाँ पे. इनइक्वालिटी नहीं है ये. समझ आई? The sum of their ages is less than 41. So can I say that Lee plus Toby, it must be less than 41? Haji, can I say that? So Afreen, Lee is y and Toby is y minus 8. It is less than 41. So y plus y is 2y minus 8 less than 41. So examiner was saying write down in terms of y an inequality to show this इसको information सॉल्व and we नहीं did that. करना. नहीं करना नहीं है, उन्होंने कहा राइट डाउन करो अभी. ठीक है, नेक्स्ट में वो कह रहा है वर्क आउट द ओल्डेस्ट एज दैट ली कैन बी. सो लेट्स सॉल्व दिस नाउ, क्योंकि y इज द एज ऑफ ली. सो 2y इज लेस देन 41 प्लस 8. बेटा 41 प्लस 8 कितना होता है? 49 होता है. यस सर. 49. डिवाइड बाय 2 49. करें बोथ साइड्स पे तो क्या होता है बेटा? 24.5. ओके 24.5. तो y इज लेस देन 24.5. तो ओल्डेस्ट एज, तो 24.5 से पिछला ईयर क्या आता है? 24 आता है. एग्री और नॉट? So it would be 24 years because it is written here. They give your answer as a whole number of years. 24.5 में वो आंसर नहीं मांग रहे थे, वो कहते हैं पूरा कंप्लीट ईयर बताना. तो ओल्डेस्ट एज की ली की सबसे ज्यादा एज कितनी हो सकती है? वो 24 ईयर हो. ठीक है, ओके. अब ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी अभी. साइम कैन यू हियर मी? जी सर. Okay, so x is an integer. Write down all the solutions of inequality. क्या करूं साइम? सर -1 on all sides. वाह क्या जबरदस्त, गुड जॉब. तो 3 minus 1 less than 2x plus 1 minus 1 less than 13 minus 1. So 3 minus 1 is 2 less than 2x plus 1 minus 1 cancelled. 13 minus 1 is 2. Now, oh sorry, 12. So what should I do now? सर 2 divide on all sides. क्या बात है भाई, divide by 2. खूबसूरत. So x is greater than 1 and x is less than 6. So write down all the solutions. बताएं जी, x should be greater than 1 but less than 6. 2, 3, 4, 5. Very good. 2, 3, 4, 5. साइम बहुत स्लो गए हो, क्या चक्कर है? सर लड़कियां मुझे जवाब लगा दे रही हैं बेटा. सर मुझे लगा सबसे पूछ रहे थे. सबसे नहीं, आपसे ही पूछ रहा था. आपसे माइक ऑन था तो आपका मतलब आप होता है. अच्छा सर. Okay, question number 26. Lorcan has been asked to solve the inequality. अच्छा, ये खुद ट्राई करना चाहेंगे? 25 क्वेश्चंस तक तो मैं कर चुका हूँ और 3 मिनट रह गए हैं क्लास में. जी सो सर. काइंडली प्लीज जरा ट्राई कीजिएगा. ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके ऊपर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और काफी सारे अच्छे सवाल हैं. 35 क्वेश्चंस हैं टोटल और क्वेश्चन नंबर 26 तक तो मैं कर चुका हूँ वर्कशीट में. ठीक है, तो काइंडली प्लीज डू प्रैक्टिस दिस, ताकि कल जो है मैं आप लोगों को इसका बेसिक एक दफा पास पेपर करा दूं थोड़ा सा. फिर वी विल मूव टुवर्ड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एंड रिमेंबर वन थिंग, टुमारो क्लास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको नो 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 सॉरी, वी हैव सीक्वेंसेस आफ्टर द सिलेबस. मैंने आपको सिलेबस दिखाया है अभी थोड़ी देर पहले. एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन. This is our syllabus and we are done with the inequalities. This part 1. We can construct, solve and interpret inequality now. Representing linear inequalities in two variables graphically, we need coordinate geometry understanding for that. So that is the reason we will be doing this part after coordinate geometry. We will be doing sequences tomorrow, inshallah. And in sequences, beta, tomorrow class, I can finish sequences in one class. It is very easy topic. It is not a difficult topic at all. So that is the reason I want all of you to be present tomorrow, okay? So that we can easily fix 2.7 sequences. After that, we have proportion. We are done with this already. Directly proportion and inversely proportion already lecture is uploaded on YouTube as well. I can touch graphs after if I'm done with the coordinate geometry, and coordinate geometry is our
next topic, which is topic number 3. And it is very easy. All you need is regularity in coordinate geometry. You will not miss any single class from now onwards. Okay, that is what very important is. So take care, everybody. See you tomorrow, inshallah. Take care. Allah Allah Hafiz, sir. Allah 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 Hafiz. Hafiz, Thank you. sir. Allah Hafiz. Allah Thank you so Hafiz.